wastage. Hello. Yes. So it has to be proper. There should be no wastage. There should be proper usage of your time. So in professional baking, usually the way is we have these types of compound for the starting. So these compounds are, one is your dark compound, which we use on cakes like Black Forest. One is your milk compound like Cadbury. It is like Cadbury. I'll be showing it to you. This is the dark compound. This is your dark compound. This is your milk compound. It's on the sweeter side. Kids usually prefer this. And one is your white compound, which we have this Milky Way. So these are, so there are so many companies. There's Mode, there's 2M. You get these, and then you can just make these chocolates with different flavors, different textures, different presentations, gift it to your relatives, friends, take it as a business. So here, what we'll be doing, we'll be taking the whole slab, we'll be melting it properly, we'll be adding flavors, different shapes, and plus packing and decoration. So actually, it's a whole class of professional chocolate making. So the first thing is, these are the 3 different types of chocolates which we'll be using. The other is the melting method, which I'll use it 2 ways. One is your microwave method, and those who don't have a microwave, we have the boiler. We use it the double boiler method. So that I'll be showing you. Then I'll be showing you, these are the 3 types of chocolates which we can make. Like we'll be making dry fruit chocolate. We'll be making without molds. We'll be making with molds. We'll be making with flavors. So everybody, even those who don't have a mold ready at home in remote places, they can make the chocolates. So the first thing is, I've shown you the different types of chocolates. This is the white one. This is the milk one. And this is the dark one. Now for the double boiler method, we'll be taking a steel pan with water, a little bit of water, and we'll be keeping it to boil. Then we'll be taking a little bit of a bigger steel bowl, and we'll be keeping it above it, so the water doesn't touch the base. We'll take our chocolate. Shabana ma'am, Yes. Before we Yes. You continue, just want to give a warning. Yes. Students who are like still under 15, yeah, under 18, they should do under like Observation under some supervision. adult supervision. Yes, under Don't, adult supervision. yeah, please don't try on it. Yeah, they can take your moms, elder sisters, grandmothers, any aunts, anybody, and they can take their help. So here we'll be boiling this, and we'll be taking a dark chocolate compound and cutting it into small pieces with a knife, with a scissors. I usually use kitchen scissors. And we'll be keeping it to melt. Yeah. Spatula. Now the temperature shouldn't be too high. Usually the mistakes which people do is they actually burn the chocolate. So how butter, chocolate has cocoa butter or vegetable fat in it. So that's why we have to give them very mild temperature, so it doesn't burn. So once it just heats up, you have to mix it up so the temperature it becomes uniform. And then you can see the chocolate melting. So you shouldn't leave it unattended. You have to go on stirring it so it comes to the proper consistency. Ma'am, Teju is asking how much compound have you taken for that much of chocolate? Compound? See, I have taken just to show you, I have taken on half a slab. So in this, we can easily get 8 to 10 chocolates. But in the end, I'll be explaining. I would prefer that you take half
of the full this thing, and when you are making it, take half or one, and then you melt it properly. Because see, you have to have a proper way of making. 2 3 chocolates doesn't make sense. You have to make the whole bar of chocolate, and then you can wrap it and keep it in the fridge, so that you can use it for 3 months. Yeah, see, the water is boiling in just a short time, and see, it has melted, and some pieces are there. So now I'll just make it uniform, and I'll melt it. You don't have to burn it. See, got it? Now this is the melted stage. Yeah. So this is the way of melting chocolate. You can melt dark chocolate, you can make melt milk chocolate, you can melt white chocolate with this method, double boiler method. It doesn't take too much time. Now, as we have melted the chocolate, we have 3 types of molds. You can make it without molds also, but I'll be showing you the 3 molds. This is your plastic mold. This is your plastic mold, which is very less price. It has a very economical. This is your plastic molds, and every time something or the new is turning up in the world of chocolates making. And then we have your silicon mold. So these are the classic shapes: the shell shape, the floral shape, and the stars and hearts. So these are the classic shapes which you can use at any time. Then you have the modaks. Then you have the Valentine hearts. So in on each and every occasion, you can present chocolates. You can present chocolates for Valentine's Day. You can present chocolate for birthdays, for Diwali, for Christmas, for any gifting occasion, for children. See, got it? This is the melted chocolate. मैम Now this कृतिका इज आस्किंग कि आपने घी भी ऐड किया है क्या? no. This is just the compound. Just the compound. This compound has cocoa powder, ghee or cocoa butter and sugar in it. But we are taking, for professional purposes, we are taking the whole bar and we are melting this. We are melting it and we are making it, we are owning the recipe by using the proper different shapes, by adding flavors to the chocolate, by adding the shapes to the chocolate. So this gives you consistent results. We can make from scratch, but then the recipe changes with the temperature. Chocolate consistency changes with the temperature, so that brings a lot of issues. So it's better that you take the compound. You take the compound, you open it once, don't keep it half. Open it once, melt it fully, make all the chocolates the way I show you, wrap it up and keep it in an airtight container in the fridge. So what happens, whenever you want to gift it, whenever you want to sell it, you don't have to make the all arrangements. Everything is ready and you have just I'll be showing you the chocolate afterwards, how to pack it up. You can pack it up in small potlies, you can pack it up in trays and give it sorry, big mithai boxes. You can do it different lots of ways. So now as the chocolate has melted, you'll see it's very easy. You can take your mold and you can fill it. Like suppose this is a floral one. You can just fill it with chocolate. Keep it in the fridge till it sets. Remove it till it sets. Tap it and pack it up and keep it. This is the simplest way of making chocolates. You can make dark chocolate. You can make white chocolate. You can make milk chocolate. So I show this thing. The way which we have melted the chocolate, we have made it into this, put it into this mold, silicon mold, and we'll be showing you how easy it is. Now this, I'll keep it in the fridge for 5-10 minutes at the most, remove it and pack it. Ma'am, Janvi is asking, can we mix both the compounds? Like yes, you can mix it, but first I would recommend that the melting temperature is different for all chocolates. So I would recommend that you first make the simple ones. See, it's in the fridge. Got it? How it said? This is the milk chocolate. This is the milk one. I've put it in the same mold to show you. This is the simplest way of making chocolate.
The first one, this is the milk chocolate. This is the white chocolate. Here, this is the white chocolate. And this is the dark chocolate. This is the simplest method of making chocolates. Ma'am, Anu is asking, white chocolate Yeah. compound is difficult to melt than dark or milk ones. Any solution for that? Yeah, see, as I've said earlier, chocolate is very temperamental and it is very, what do you say, the reaction to temperature is very fast. So suppose if you keep it starts to melt and you warm it up more, then it splits. White chocolate needs very little heat to melt. And if you apply more heat, it seizes. So that's why you have to be very gentle. The way I showed you, starting, you have to be very gentle. As it's melting, you don't leave it unattended. You go on mixing the chocolate so that you get the temperature is uniform in all ways. Got it? I hope I have answered your question. Now, this is the chocolates which we have done, the simplest ones. So you don't have, this is the most important part. People make chocolates as they remove from the fridge, the same time you have to pack it. Here you'll take the chocolate. This is the simplest chocolate. You'll turn it heart shaped. You'll turn it down and you'll pack it up. Chocolate making is not complete until and unless you have packed it up like this. Here. This is the most common mistake which people do. They start making chocolates, they keep it uncovered, and then afterwards they start packing it so it sticks to your hands, the moisture. Now this is the proper way of doing it. That's why I've shown the professional way of making chocolate is this. You just make the chocolate, you pack it up, then it's complete. You put it in your container. We'll be putting it in a container, airtight container, and keep it in the fridge. This is your milk chocolate. See, I've taken the wrapper. You get the wrappers. You can do it. If you don't have, you can use aluminum foil. Here. This is the shape of the chocolate. You'll put the shape down. Then you'll turn it this way. This is the easiest way of making chocolate. But the most important foundation of making chocolate is this, that you have to use a proper temperature and you have to set it and properly pack it up. Now you can say that it is complete. Your chocolate making is complete. This is the professional way of, yes. Yes. And this is the white chocolate. Yeah. Do we have to break the chocolate before we start melting it? Yeah, of course. You can chop it up. You have to chop it up. I've showed you, I've used the kitchen scissors to chop it up. You can use a knife to chop it and apply the heat. See, this is the white one, the heart shape one, which I'm putting it down and I'm packing it up like this, tight. Then lightly I am taking the foil is taking the shape of the chocolate. This is the simplest way of making chocolates. Once you have mastered this, the temperature, you have to take a light temperature, you have to set it and you have to pack it. Then you can go on to the other flavors and other textures. If you don't know this proper point of making professional chocolates, then everything will be a mess and you'll be wasting your time. Okay, now done? Ma'am, Tina is asking, do we yes. mix anything else in the compound or like? No. For this chocolate, the first chocolate where I've shown you, you'll be just melting the chocolate because I have to show you the basic. This is the basic way of making chocolate. The foundation of making chocolate. If you understand this, that you have to take the chocolate, you have to melt it, you don't have to leave it unattended, don't burn it, and set it and pack it up. Once you have packed it up, this means that you have done the A to Z of chocolate making. Then now we'll be starting the flavors, the textures, the colors, the shapes. But important is this. The first thing is important is that you have to pack. Once you have packed the chocolate, then you have done your chocolate professionally. Otherwise, if you keep it like that, it will leave moisture and
It won't be a professional way of making chocolates. Okay, now understood? I hope you'll have understood the basic of chocolates. Now I'll start with the different textures and the Mira is different asking, fillings. can we use? Yes. Mira is asking, can we use cocoa powder and milk instead of compound? See, you can use cocoa butter, you can use milk solids, you can use a wide variety of ways. But in the start, when you're starting a business, you should have a proper consistency of the chocolate should be proper. But it should be uniform. One batch should be uniform, the other batch, the taste should be uniform, the shape should be uniform. Once you have started this, you have done the professional till the end, then you can go to the Quaker chocolates, and then you can make your own thing. But for the starting, professional, I would recommend these milk bars, milk compounds. I would recommend that you start with this. Once you get the basics right, then you can go on to the advanced stage. Now, these are the first chocolates, the ones which we have made the 3 chocolates. Now you can do it with nuts. So nuts, you have almonds, you have walnuts, you have cashews, you have hazelnuts, and any variety of nuts, pine nuts, any nuts you can use. In the starting, we use almonds, cashews, walnuts. So there's a proper way of making chocolate. Now you can make this with dark chocolate, you can make this with white chocolate, you can make this with milk chocolate. It's your preference. So the almonds, we have to roast it. Roast it for 2 minutes on a flat tawa. Yeah, see, you can see that little bit dark. You get the roasted flavor. So you roast the diamonds, roast the almonds, and keep it to cool down. It shouldn't be warm. Once it's cool, then you can use it for your chocolate making. See, the first way I'm showing is with the nuts. So any nuts, you can use walnuts, you can use cashews, you can use a variety of nuts. But the method will be the same. See, you'll take a chocolate. The first time we made a simple chocolate, right? Now this we are making with the nuts. So what you'll do, you'll take a chocolate and you'll fill it half up. You'll fill the half of the chocolate. You'll keep your nut inside, almonds. You'll keep your almond inside, and then you'll fill it up with chocolate. Got it? This you'll fill up, and then you'll tap it. So this shape, you can make all the shapes of the chocolate. For professional, you have to make the full batch of chocolate at once. You'll put the chocolate, you'll put the almond inside, you'll cover the almond with chocolate, you'll make the whole batch, you'll keep it in the fridge. When the chocolate sets, you'll remove it, and again, you'll pack it up like this, and you'll keep it. So one batch of your dry fruit chocolate. This is called dry fruit chocolate. So one batch of your dry fruit chocolate is done. You have to make it in quantity. Chocolate making is done in quantities. So your time is not lost. There is no wastage. And you get a good quantity and which you can use it for 2 months. If you keep it in an airtight container in the fridge. And especially chocolates, you can't make 3-4 chocolates, 3-4 different varieties. You have to make a vast range of chocolates. Because it is labor intensive. It is not capital intensive. With little money, you can make a lot of chocolates. Yeah, so you can keep this. Now nuts, you can use 2 ways. You can keep a proper almond inside, or you can put a proper almond over the chocolate. Like now I'll be showing you. Asking, do we have to Yes. fill the mold till the fully, or we have to keep it? No. What I have done, I've shown you. I have filled it halfway. I have filled the chocolate halfway. This is the mold. I have filled the chocolate halfway, and then I've kept my almond in the between. I've kept my chocolate halfway here. See, in the middle. I've filled the chocolate halfway. Then I'll be putting my almond inside. And then I'll be covering it with chocolate.
So you can put almond, you can put cashew nuts, you can put walnuts, you can put any nuts in it. Nowadays, the trends change as in fashion, as in any other. So now the trend is that you fill the chocolate up. You have two ways of doing it. Now the trend is that once if you're using almonds, it should be seen. So here I'm putting the chocolate here and I'm putting the almond over it here. So it's set, you can see the almond. One, the almond is inside, and the other, you can see the almond. Both ways you can keep the nuts in your chocolates. Then the other way is your mixed fruit powder, mixed nuts powder. You can use mixed nuts powder. So what you can do is you can take your chocolate, you can mix up the, yeah, this is your chocolate. You can use your powder chocolate, mix it up like this, mix it up like this, and then fill your mold. So this will be the dry fruit will be in powder form, like chicky. How you get the dry fruit chicky? This chocolate will be in powder form. So for nuts, Do there we are have three to ways. fill the this Yes. up to the brim, or we can left it little empty? No. If you fill it up to the brim, it's better. For the chocolate, for the almonds which we have put inside, that you have to fill it half up and put the almond inside and then fill it up. So the almond remains in the middle. And the other way is putting on top, and the other way is, the third way is powdering it and mixing it with the chocolate. So in nuts, you can do these three chocolates in milk chocolate, in white chocolate. Even in the white chocolate, you can put your nuts up. Yeah, see, I'll just show you. Any chocolate, you can take it and make it in three varieties: in white, dark, as well as milk. Yeah. Ma'am, one participant is asking, can you speak both in Hindi and English? So everybody can. Okay, हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करेंगे. Yeah. देखिए, चॉकलेट बनाना है ना, बहुत आसान भी है, बट यू हैव टू कीप, अपने को कोई चीजें ध्यान में रखने चाहिए. जैसे कि अभी तक का हमने बताया है, अभी तक का हमने प्लेन चॉकलेट बनाए सिर्फ ये बार्स से. जैसे ये मिल्क कंपाउंड है, ये डार्क कंपाउंड है, और ये व्हाइट कंपाउंड. ये तीन कंपाउंड से, अब ये तीन कंपाउंड, एक आता है 500 ग्राम्स का, एक आता है 400 ग्राम्स का मॉडे का. तो कितना भी ग्राम्स का होवे, तुम जब उसको चॉप करोगे और उसको मेल्ट एक ही टाइम पे करोगे, एक टाइम पे मेल्ट करेंगे, एंड देन विल मेक ऑल द डिफरेंट वैरायटीज एक साथ में. विल पैक इट अप लाइक दिस, एंड विल पैक इट अप लाइक दिस. हाँ, हम उसको पैक करेंगे और फ्रिज में रख देंगे. चॉकलेट बनाने का मतलब बहुत सिंपल है. आप चॉकलेट का बार लो, मेल्ट करो, धीरे मेल्ट करो, ज्यादा उसको गरम नहीं करना है. उसको सिर्फ उतना ही मेल्ट करना है जितना, सॉरी, उसको उतना ही मेल्ट करना है, छोड़ना नहीं है उसको गरम करने के लिए. बस उसको हिलाते रहना है ताकि उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म आवे. Yes. And what's the refrigeration time? One participant is asking. Refrigeration time is around 10 minutes. It's around 10 minutes, depends on, ये अपने मोल्ड के ऊपर भी बचता है. जैसे अभी हम आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोल्ड्स का, तो ये है हमारे मोल्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अभी हमने सबसे छोटा मोल्ड लिए है, सिंपल मोल्ड लिए है, क्लासिक शेप लिए है, हार्ट्स वाला. स्टार्टिंग में हमको सिर्फ कम चीजों से बनाना है. तो ये हमने चॉकलेट लिए, चॉप किए, मेल्ट किए, और उसको हमने मोल्ड्स में डाले और पैक करें. तो ये हमारा चॉकलेट बनाने का तरीका सही रहता है. ठीक है. अभी एक चॉकलेट हमने बनाए नट्स वाली, जिसमें हमने आमंड्स यूज किए. तो जैसे आमंड्स यूज किए, हमने मेल्टेड चॉकलेट डाले, हाफ भरे उसको, मोल्ड को हाफ भरे, फिर उसमें बीच में हमने आमंड्स रखा और उसको चॉकलेट के साथ में हमने कवर किए. वो एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका हुआ, हमने चॉकलेट पूरा ऊपर तक का भरे और ये आमंड्स उसके ऊपर रख दिए ताकि वो आमंड्स दिखे. दैट्स कॉल्ड डिजाइनर चॉकलेट. एक्चुअली वो डिजाइनर चॉकलेट होता है. और वो हमने
सेट करने के लिए रखे, फिर वही आमंड्स या फ्रूट एंड नट्स हमने उसको क्रश कर दिए और क्रश नट्स हमने चॉकलेट के साथ में मिला के भर दिए, तो वो बन गया हमारा क्रश नट्स। जैसे हम वॉलनट, अखरोट यूज किए, काजू यूज कर सकते हैं, बादाम यूज कर सकते हैं, आजकल जो हेजल नट्स आए हैं वो यूज कर सकते हैं, हम काफी सारे नट्स यूज कर सकते हैं, ये तीनों तरीके से। समझ में आया? और ये तीनों तरीके से हम मिल्क और व्हाइट और डार्क, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। जब हम चॉकलेट बनाते हैं तो हम जो भी हमारा क्लाइंट रहता है, जो भी बायर रहता है, उसको हम हैम्पर देते हैं। हैम्पर इन द सेंस कि अलग अलग, उसको एक ही हैम्पर में उसको वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मिले, अलग अलग तरीके के चॉकलेट्स मिले, जैसे नट्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, आजकल ड्राइड फ्रूट्स मिलते हैं वो हो गए, रेजिन्स हो गए, अभी हम आगे जाके बिस्किट का टेक्सचर देंगे, क्रिस्पी टेक्सचर देंगे, न्यू फ्लेवर्स देंगे। तो हमारा क्या बोलना चाहिए, वो रहता है कि हम लोगों को वैरायटी प्रेजेंट करें। तो ये वैरायटी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, सब प्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेसिक वही रहेगा कि आप टेम्परेचर ज्यादा हीट मत करो चॉकलेट को, बनाने के बाद में उसको फ्रिज में छोड़ मत दो, वही टाइम पे जैसा निकालो, पैक करो और फिर रख दो। जैसे अभी हमारी चॉकलेट्स हमने रखे हैं, तो वैसा ही हम 10 मिनट में, 8-10 मिनट में, फ्रिज के ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, और मोल्ड्स पे, छोटा मोल्ड रहेगा तो कम टाइम लगेगा, डीप मोल्ड रहेगा तो ज्यादा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये हो गया हमारा चॉकलेट्स। अब हम इसमें टेक्सचर्स कैसा ऐड करेंगे, टेक्सचर ऐड करेंगे अभी हम, ये बिस्किट, ये ओरियो बिस्किट, अभी हमने नट्स डाल दिए हैं, अभी हमारी ये ओरियो बिस्किट है, तो एक हैम्पर में हमको मोल्ड चॉकलेट है और ये विदाउट मोल्ड का हम बना सकते हैं। तो हम, ये बच्चे लोग को बिस्किट ओरियो पसंद आती है, तो हम उसको मेल्टेड चॉकलेट में डालेंगे। And one participant is asking double boiling method better या फिर माइक्रोवेव के थ्रू? देखो, इफ यू हैव अ माइक्रोवेव, जब हमारे पास माइक्रोवेव है तो हमको तो माइक्रोवेव आसान ही है, माइक्रोवेव आसान पड़ता है। यू हैव टू 30 सेकेंड्स के लिए हमको उसको माइक्रोवेव करना पड़ता है, उसको कुछ टेम्परेचर, जैसे हम खाना गर्म करते हैं, बस 30 सेकेंड्स रखो, बाहर निकालो, थोड़े पीसेस रहेंगे, उसके टेम्परेचर घुमाओ, देखो बराबर से थोड़ी देर तक का बराबर होता है, फिर अगर थोड़ा सा बीच में पीसेस यू गेट, देन अगेन फॉर 10 seconds, 10-20 seconds यू कैन रिमूव, बट यू हैव टू बी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़े से के लिए हमारा चॉकलेट जल जाएगा। जैसे हमने बताया कि चॉकलेट इज वेरी टेम्परेमेंटल, ये देखो, ये अभी हमने विदाउट मोल्ड कर दिया है, तो हमने ये ओरियो जो है, ओरियो बिस्किट हो गई, एनी बच्चे लोग को जो पसंद है, जैसे अभी अभी नई नई बिस्किट्स निकली है, तो दैट यू कैन यूज विदाउट मोल्ड्स। अब ये हम रखेंगे हमारे जो कोई भी प्लेट पे या शीट पे, जैसे एसिडेट शीट आती है हमारी, हम उस पे रखेंगे उसको और फ्रिज में रखेंगे, एंड देन उसको हम पैक करेंगे, वैसे ही पैक करेंगे जैसे हमने बताए थे। ये देखो, ये हमने उसके ऊपर रख दिए एसिडेट शीट, या जो भी हमारे पास प्लेट्स आती है उसके ऊपर। सी, ये हमारी ओरियो बिस्किट आ गई, कवर्ड चॉकलेट ओरियो बिस्किट, बच्चे लोग के लिए मिल्क चॉकलेट से हमने कवर किए। सो दिस यू कैन कीप इन द फ्रिज। फिर अगेन ये तुम ओरियो चॉकलेट डार्क चॉकलेट से कवर कर सकते हो, ओरियो चॉकलेट को मिल्क चॉकलेट से कवर कर सकते हो, कोई भी चॉकलेट तुम लोगे तो तुम्हारे को 3 फ्लेवर्स उसमें आ सकते हैं, एक आ सकता है तुम्हारा डार्क, एक आ सकता है तुम्हारा मिल्क, और एक आ सकता है तुम्हारा व्हाइट। Ma'am, can we use aluminum foil instead of this sheet? Yes, you can use that. Yeah, see, the same biscuit I have, different biscuit I have covered it in dark chocolate. Here, just tap it. Just tap it and keep it on the. Now, same way you can use milk chocolate for your Oreo. अभी हैम्पर के लिए you have got your nuts. अभी आमंड्स जो होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, तो हम सब आमंड्स नहीं बना सकते, हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो आमंड्स, थोड़े हम आमंड्स डालेंगे जो महंगे होते हैं, थोड़े हम इसमें किशमिश डालेंगे, जो सेम मेथड होता है, किशमिश एंड काजू।
These are the raisins. So you can take kaju and kishmish. Again, half chocolate भरो, मोल्ड में हाफ चॉकलेट भरो, उसमें काजू किशमिश डालो, एंड देन यू कैन उसको भरो और उसको फ्रिज में सेट करने रखो, निकालो, रैप करो, रख दो. तो वैसे ही हम नट्स, फ्रूट एंड नट्स, अभी आजकल हमारे पास ड्राई स्ट्रॉबेरीज मिलती है, ड्राइड कीवीज मिलते हैं, ड्राइड बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं. तो तुम्हारे पास जितने भी फ्रूट्स मिल सकते हैं, जो सबसे पुराने होते हैं वो रेजन्स होते हैं, रेजन सबके घर में रहते हैं. तो यू कैन स्टार्ट विद द रेजन्स. तुम रेजन्स और काजू के साथ में स्टार्ट करो और बनाओ. फिर जैसे बच्चे लोग को अच्छा लगता है, कोई बच्चे लोग को मिल्क अच्छा लगता है, कोई को डार्क अच्छा लगता है, कोई फैमिली में किसको व्हाइट अच्छा लगता है, तो तुम अपने हिसाब से यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट. तो हमारे मोल्ड्स हो गए. अभी हमने मोल्ड्स की बात की है, तो जो क्लासिक शेप्स है वो होता है हार्ट शेप, शेल शेप, देन बच्चे लोग को स्टार्स बहुत अच्छा लगता है. अभी हर मोल्ड हमको चाहिए. लाइक सपोज अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, तो यू शुड हैव अ, तुम्हारे पास वैरायटी होना चाहिए. लाइक अगर छोटे चॉकलेट्स है तो वो 10 चॉकलेट आ जाएंगे उतने पैसे में, बड़े चॉकलेट रहेंगे तो कम पीसेस आएंगे. तो हमको एक हैम्पर जब बनाएंगे तो हमको ये बिस्किट्स, जैसे बिस्किट्स है, तो ये कम पैसे में इतना बड़ा चॉकलेट बन जाती है, तो दिखने में भी अच्छी लगती है, प्लस वैरायटी रहती है. और हमारे हैम्पर में जान आ जाती है कि अलग अलग फ्लेवर्स, अलग शेप्स और बड़े दिखते हैं. जैसे अभी हमने ये है स्ट्रॉबेरी वेफर्स. अब ये स्ट्रॉबेरी वेफर्स है, तो हमको मोल्ड्स की जरूरत नहीं है. जैसा हमने ये ओरियो डिप किए, वैसे इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स आते हैं, इसमें चॉकलेट फ्लेवर आता है, इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर आता है. तो हम उसको अक्खा डिप करके भी बना सकते हैं हैम्पर के लिए, और यू कैन कट इट इनटू स्क्वायर्स. देखो तुम स्क्वायर्स में काट सकते हो, रेक्टेंगल में काट सकते हो. ये अभी हमारे 3 पीसेस हो गए. ये अभी हम चॉकलेट में मेल्ट करेंगे, डिप करेंगे, एंड चॉकलेट में डिप करके हम निकालेंगे, तो ये हमारे स्क्वायर पीसेस हो जाएंगे विदाउट मोल्ड. दिस विल बी विदाउट मोल्ड. तो ये हमने आज जो हम लोग का जो सेशन है वो ज्यादा पैसे खर्चा करे बिगर प्रोफेशनल. ये विदाउट मोल्ड का हमारे पास ये बन गया है स्क्वायर कलर का चॉकलेट, और फ्लेवर भी इसमें आ गया है हमारा स्ट्रॉबेरी, जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और हमारा स्ट्रॉबेरी अंदर जो वेफर का है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है. ये पिकविक के फ्लेवर्स आते हैं, ऐसे अलग अलग कंपनी के फ्लेवर्स आते हैं, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं. इसमें मेहनत ज्यादा नहीं होती है और हमको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. यू कैन गेट अ बिग, देखो ये वाला बड़ा वाला भी हम बना सकते हैं, और इसमें हमारे को टेक्सचर मिलेगा अंदर वेफर का, और बनेगी हमारी चॉकलेट इतनी बड़ी. ये तुम एल्यूमिनियम फॉइल के साथ में पैक कर सकते हो, एंड यू कैन, तुम छोटे छोटे पीसेस भी उसके बना सकते हो. ठीक है. कभी हमारे दो टेक्सचर हो गए, एक नट्स का हो गया, एक बिस्किट्स का हो गया, एक हमारा मोल्ड का हो गया, विदाउट मोल्ड हो गया हमारे. ये डिफरेंट वैरायटी के हमारे चॉकलेट्स आज के लिए इतने हो गए हैं. इसको वैसे ही हमको सेट करके रैप करना है. Bring the, और And ज्यादा Sakshi is उसको. asking, यस. if we have how to use dried kiwi fruit. Do we have to use it in a layer method, or is there any other way to do it? Dried kiwi fruit, if you want to put it. देखो ड्राइड कीवी फ्रूट जो है ना, अभी यू आर यूजिंग कीवी, तो हम रेकमेंड करेंगे कि वो दिखना चाहिए. अगर तुम खा रहे हो तो तुमको टेस्ट में समझ में आएगा कि तुम कीवी खा रहे हो. So you can use it inside also like raisin. You can use it inside also. But since it has color, so I can show you another method. I can show you this method. See, ऐसे ऐसे चॉकलेट के मोल्ड्स आते हैं. तो ये हम चॉकलेट भरेंगे उसके अंदर, and then you can pour it over. ये देखो ये वाला चॉकलेट है हमारा. अभी ये हम दिखाएंगे. एक होता है चॉकलेट जिसके अंदर सब फ्लेवर्स होते हैं, और ये होता है डिजाइनर चॉकलेट जिसमें हम कीवी दिखा सकते हैं. जैसे आपने कीवी, स्ट्रॉबेरी, इतनी सब चीज एग्जॉटिक फ्रूट्स लाए हैं, तो वो दिखना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा दिखाएंगे. I'll show you. So I keep this also in the fridge.
तो वो हमको दिखाने के लिए आजकल जैसा जो डिजाइनर माहौल चल रहा है, यू कैन यूज इट एज अ डिजाइनर, तुम यूज कर सकते हो। जैसा अभी हमने ये सिंपल आइस क्यूब्स ट्रे को ट्रे की तरह यूज या कर सकते हैं। या हाँ हाँ, आइसक्रीम ये आइस क्यूब जो होती है वो यूज कर सकते हैं। देखो अभी हम ये मार्बल बना रहे हैं, ठीक है। अभी जो भी नया आता है यू कैन यूज दैट। अभी जैसे अभी पहले ये छोटे छोटे मोल्ड्स आते हैं वो हमने दिखा दिए, अभी ऐसे हमारे पास ऐसे बड़े मोल्ड्स आते हैं। तो ये हो गया मार्बल चॉकलेट। हम डार्क और व्हाइट मिला के मार्बल इफेक्ट देंगे इसके अंदर। ये आई कैन गिव अ मार्बल इफेक्ट। ये हमने टैप कर दिया, टैप करेंगे तो सब कॉर्नर्स में भर जाएगा ये। And then I can take the end of the spoon, I can use it like a marble. तो ये दिखने में भी अच्छा होता है, डिजाइनर चॉकलेट टाइप का भी इफेक्ट आता है, प्लस यू कैन पुट सम कीवीज और समथिंग ओवर इट ताकि दिखे हुए हमारा। सी दिस इज द मार्बल चॉकलेट। यू कैन मेक इट विद डार्क एंड व्हाइट। गॉट इट। अब ये हम वापस फ्रिज में रखेंगे, सेट होने के बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब ये हो गए हमारी सब सिंपल चॉकलेट्स विदाउट मोल्ड्स, विद मोल्ड्स। अब आखिर में हमको दिखाना है विदाउट मोल्ड्स जो नट्स हम यूज करते हैं, आमंड्स जैसे हमने यूज किए हैं और नट्स, तो वो हम उसको रॉक्स बनाएंगे। जितने भी जैसे बच्चे लोग को जस्ट चॉकलेट खाने का शौक है तो हमको उनको ड्राई फ्रूट खिलाना है, तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला जो है नट्स, सब नट्स लेंगे, उसमें चॉकलेट मिलाएंगे। मैम ओरियो चॉकलेट को भी रेफ्रिजरेट करना है क्या? हाँ हाँ, हमने सब जो भी बनाया वो रेफ्रिजरेट करेंगे, निकालेंगे और पैक करेंगे। सब जो भी चॉकलेट है उसका हमने बेसिक पहले ही बताया, इसको पहले मेल्ट करेंगे, सेट करेंगे एंड देन उसको सेट करके और फिर उसको पैक करेंगे। ना ये देखो ये हमारे आमंड्स है, हम इसको ऊपर इसको रॉक्स के जैसा शेप देंगे। गिव मी वन प्लेट नो। इसको हम रॉक्स के विदाउट मोल्ड्स, जिसके पास मोल्ड्स नहीं है घर में तो वो हम ऐसा ले सकते हैं आमंड्स को और उसको रॉक्स के जैसा शेप दे सकते हैं, वापस वही एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर या एसीटेट शीट के ऊपर, जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसके ऊपर। ये देखो अभी हम इसको देंगे तो ये हमारे रॉक्स के जैसे शेप बनेगा, जिसमें कम से कम 3 आमंड्स होना चाहिए। 3 आमंड से ही वो शेप बैठेगा। दैट्स व्हाई आमंड रॉक्स बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं, क्योंकि उसमें चॉकलेट के साथ में आमंड्स का भी एक्सपेंस बढ़ता है। गॉट इट। और ये भी हमको वैसे ही बनाना है, सेट करना है और पैक करना है। What's जो the भी name ओरियो of this बिस्किट, sheet? What's the name of this sheet? ये एसिडेट शीट है, जैसे अभी हमारे बच्चों की फाइल होती है तो हाँ आप फाइल क्लीन करके वो भी यूज कर सकते हो, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, बच्चों लोग की फाइल होती है, यू कैन यूज दैट। देखो अभी ये जो हमने सेट किए थे नट्स के, ठीक है, अभी हम तो दिखाने के लिए आई हैव मेड दिस, बट यू हैव टू मेक द होल बैच। आपको पूरा बैच बनाना है क्योंकि क्वांटिटी हमको चाहिए। तो देखो ये वाली जो चॉकलेट है, ये वाली चॉकलेट जो है इसके अंदर आमंड्स है, दिख रहा नहीं है बट इसके अंदर एक पूरा अक्खा आमंड है, तो वो भी हमको वैसा ही लेंगे, पैक करेंगे और ये शेप देंगे हल्का सा ताकि ऊपर से हमको पता चले कि इसमें नट्स है। वो याद रखना पड़ता है कि ये हार्ट वाले प्लेन है। जब जब आपके पास मोल्ड्स रहेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, हार्ट में मैं हमेशा प्लेन रखती हूँ, फ्लोरल में आमंड्स डालती हूँ, शेल में काजू डालती हूँ, ताकि जब हम हैम्पर बनाए तो आपको अंदर तो दिखेगा नहीं, तो आपको शेप से समझ में आना चाहिए कि मैं ये वाला है। बिस्किट ओरियो से समझ में आ जाते हैं
बट नट्स जो हम अंदर डालते हैं, रेजिन्स, काजू जो अंदर डालते हैं, जो फ्लेवर्स अंदर डालते हैं, तो वो हमको शेप से हमारे खुद के काम करने के टाइम पे शेप्स से याद करना पड़ता है। अब देखो ये वाला जो है, जैसे अभी आपने पूछा था किसने कीवी का, तो आप कीवी को ऐसा रख सकते हो, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कीवी लगाया है, और दिखने में भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा आपका। गॉट इट? तो ये जो है, ये हम इसको ऐसा लेंगे एंड अगेन रैप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है चॉकलेट मेकिंग में टेम्परेचर का ध्यान रखना, पैकिंग का ध्यान रखना। पैकिंग करके ही तुम्हारा चॉकलेट का बनाना कंप्लीट होता है, और Nidhi is क्वांटिटी में asking बनाना। कि if we make chocolate in bulk, then it will take time in packing. So still that नहीं नहीं chocolate will not lose out moisture. नहीं नहीं नहीं, मॉइस्चर क्यों? जैसा तुम्हारा बैच, एक बैच बना, तुमने फ्रिज में रखे, जैसा भी हमने कैसा किए, पहले हमने बैच बनाए और हमने हार्ट शेप बनाए, वो लाए। अब हमारा जो है नट्स का बना, तो हमने नट्स में पैकिंग किए। जैसा ही इसके लिए इसका एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। ये तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ लेना है हमको, मेल्ट करना है, हमारे मोल्ड्स में डालना है, अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स की सब तैयारी करके रखना है, बिस्किट्स, वेफर्स, रेजिन्स, आमंड्स, जो जो इसके लिए अभी ज्यादा फ्लेवर्स नहीं बता रहे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए हमको सिर्फ जो उसका फ्लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम टाइम में हमको ज्यादा क्वांटिटी बनानी है। देखो ये जैसे ये अभी हमने बनाया, इसको हमने पैक करे, ऊपर से आमंड दिख रहा है, एंड देन आई कीप इट। जब हम पैक कर देंगे, जब ही हमारा काम खत्म होगा, उसके पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं कोई भी चीज। अब ये है, ये हमारा मिक्स नट्स जो हमने पाउडर्ड नट्स करे थे, तो वो ये पाउडर्ड नट्स है। इसका टेक्सचर खाने में जैसे चिक्की के अंदर कैसा ड्राई फ्रूट चिक्की आती है पाउडर, वैसा इसमें चॉकलेट के साथ में ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आएगा। मैम खुशी is asking कि she used मोर्डे white chocolate, but heat करते वक्त वो सही से हाँ मेल्ट नहीं हो रहा है, तो देखो, और लम्स आ रहे हैं। So what to do? हाँ तो सबसे पहले जो फर्स्ट व्हाइट चॉकलेट में ये प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम मोर्डे का जो चॉकलेट बार लिए है ना, जो मोर्डे का व्हाइट कंपाउंड लिए है, तो हमको वही टाइम पे ओपन करना है, एक ही बार में उसको मेल्ट करना है, धीरे 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 एकदम लाइट, जैसा हमने कैसा रखे थे, और उसको हिला, जब छोड़ना नहीं है उसको ऐसी कि हाँ भाई पकने दो, उसको हिलाते रहना है ताकि उसका यूनिफॉर्म टेक्सचर आवे, और बाहर हिलाते रहना है, एकदम हीट पे नहीं रखना है, निकालना है। फिर हमको लगा कि अगर उसमें पीसेस है तो फिर हल्का हीट डालो, फिर हटाओ, एकदम केयरफुली ध्यान से हमको मेल्ट करना है। हम उसको अगर छोड़ दिए तो वो या तो जल जाएगा या तो सीज जाएगा। और पानी, जो भी हम बर्तन यूज कर रहे हैं उसमें पानी जरा भी नहीं होना चाहिए, एक ड्रॉप, उसको एकदम ड्राई होना चाहिए। अगर पानी तुम्हारे चॉकलेट में आ गया, दैट्स व्हाई हमने जब बर्तन लिए थे, तो ये छोटा बर्तन है, दिस इज द स्मॉलर, ये छोटा बर्तन है, और ये जो है वो बड़ा है, ताकि इसकी स्टीम इसके कांटेक्ट में नहीं आए। हमको जरा भी पानी चॉकलेट के कांटेक्ट में नहीं आना है, और टेम्परेचर एकदम संभाल के स्लो पे, भले थोड़ा टाइम लगे, जल्दी तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन घाई नहीं करना है उसको। टेम्परेचर को, चॉकलेट को हिलाते ही नहीं, पूरा इसका एक टेम्परेचर होना चाहिए, बस हिलाते हिलाते ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से मेल्ट करना चाहिए, ध्यान से फ्लेवर डालना चाहिए, ध्यान से सेट करना है, सेट करने के बाद में पैक करना चाहिए। देखो ये भी हमारा एक फ्लेवर है जो हमने शेल्स के अंदर डाले थे, तो वो भी हम पैक करेंगे, या ऐसा पैक करेंगे। अब पैक करने के बाद में तुम्हारा काम खत्म होता है, तुम एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में डाल के रख दो। ये देखो, ये हमारा ऊपर से शेप आ गया हमारा शेल का। अब ये शेल का शेप आ गया, तो हमको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी चॉकलेट हमने डाले, इसके अंदर कौन से डाले हैं। व्हाइट एक जगह, मिल्क एक जगह, डार्क एक जगह, और फ्लेवर्स अलग अलग। देन यू कैन मेक Maya अ is हैम्पर। asking कि when we dip यस, Oreos और wafers, तो जब हाँ फोक से उसको उठाते हैं तो हाँ, तो टैप करना चाहिए। फोक मार्क को कैसे रिमूव करें, जो नीचे फोक के मार्क आ जाएंगे? देखो, फोक के मार्क्स जो होते हैं ना, वो हमको उसको टैप करना चाहिए, और फिर उसको बस रख देते हैं हम नीचे, तो उसके मार्क्स नहीं आते हैं। जब
जब चॉकलेट को हम टैप करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं आते हैं नीचे, उसको स्ट्रेट अवे करना चाहिए। और कभी अगर मार्क्स आए, अगर कभी मार्क्स आए तो देन जो मार्क्स आए तो हटा के यू कैन जस्ट डिप इट इन द लिक्विड चॉकलेट आफ्टरवर्ड्स। जब हमारा सेट हो गया उसके बाद में हल्का एकदम प्रोफेशनल के लिए फिर हम उसको हल्का सा डिप करते हैं एंड देन यू टर्न इट, बिकॉज ऊपर वाला तो सेट हुआ रहता है तो वो खराब नहीं होएगा। बट दैट इज व्हेन इट इज एकदम व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। Great, great. So everyone will take a 2 minutes break here. We would like to inform you about ma'am's paid workshop with us. So anybody who is interested in learning baking, so ma'am will quickly explain what the workshop is. So ma'am, you can explain and I'll Yes. share my screen. हेलो। Yes, ma'am. यस, अभी ये जो हमने बनाए थे चॉकलेट्स, आज हमने बनाए फ्रूट एंड नट, बिस्किट का, वेफर्स का, प्लेन एंड 3 फ्लेवर्स में। हेलो। Yes, ma'am. You are audible. हाँ हाँ, आज हमने जो चॉकलेट्स बनाए हैं वो हमने स्टार्टिंग में प्रोफेशनल वे में चॉकलेट्स बनाने के लिए, बल्क में चॉकलेट्स बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हमने चॉकलेट्स बनाना शुरू किए हैं। दीज ये चॉकलेट्स जो है वो तुम जरा भी तुम्हारे मॉइस्चर का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जरा भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है जलने का, वेस्टेज होने का, जरा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा व्हेन यू डू इट दिस वे। फ्लेवर्स हमने सिंपल बताए हैं। अब इसके आगे ये जो हमने बनाया है ये प्रॉपर तुम्हारा प्लेन चॉकलेट्स हो गई, नट्स के साथ में हो गई, रेजिन्स के साथ में हो गई, बिस्किट्स के साथ में जो फ्लेवर्स है उसके साथ में हो गई, रॉक्स हो गए हमारे विदाउट मोल्ड्स। ये हमने 5-6 तरीके के चॉकलेट्स अभी बता दिए। इसके आगे जो है, जब एक बार तुम्हारे को ये चॉकलेट्स बनाने आ गए, परफेक्ट हो गए, उसके बाद में तुम ये कलर्ड चॉकलेट्स पे जा सकते हो। यू कैन गो ऑन टू द कलर्ड चॉकलेट्स। फिर चॉकलेट के अंदर फ्लेवर, चॉकलेट के अंदर फ्लेवर 2 तरीके से डाल सकते हैं हम। एक हमारी फिलिंग जो हम अगले ही क्लास में बताते हैं कि जैसे सपोज अगर अभी आपने ये नटेला लिए तो नटेला बहुत एक्सपेंसिव आता है और चॉकलेट्स में इतना सा यूज होता है, तो ये सब वेस्ट करने के बदले में हम लोग खुद की फिलिंग्स बताते हैं। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कैरेमल, कोकोनट, हर एक टाइप की अलग अलग फिलिंग्स बताते हैं जो कम लगे और घर में कम कॉस्टिंग में आवे। क्योंकि नटेला जो है अभी हम चॉकलेट्स बनाएंगे, कितनी चॉकलेट्स बनाएंगे तो उसमें ये यूज होएगा और वेस्ट होता है ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, खुद की फिलिंग्स बना के चॉकलेट्स बनाते हैं ताकि वो फ्रेश भी रहे। और दूसरी एक, दिवाली के टाइम पे हमेशा क्या होता है कि सब जगह से मिठाई आती है, ये मुझे बताना चाहिए कि दिवाली की तरफ से कभी लड्डू आ गए, कभी काजू कतली आ गई, कभी वो आ गई, तो रहती है और थोड़ी सी मिठाई बच जाती है। तो वो भी मिठाई हम यूज कर सकते हैं हमारे चॉकलेट्स के अंदर। वो चॉकलेट्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं कि हम काजू कतली लिए, उसको मैश किए, उसका छोटा सा गोल बनाए, फिर जैसा हमने नट्स के टाइम पे हाफ चॉकलेट भरे, उसमें काजू कतली का गोल डाल दिए एंड देन यू कवर इट विद द चॉकलेट एंड देन यू कीप इट फॉर सेटिंग। दैट इज द मेथड ऑफ यूजिंग योर लेफ्ट ओवर लड्डू, बूंदी एंड मेकिंग इट एन, उसको नए अवतार में बना के तुम खाओ या प्रेजेंट करो। तो वो भी हमारे वेस्टेज, उससे भी हमारा वेस्टेज बचता है। प्लस हमारी चॉकलेट्स को एक इंडियन फ्लेवर आता है, देसी फ्लेवर आता है जो बहुत इन होता है। सब नए नए टाइप के चॉकलेट्स आते हैं। अभी ये चॉकलेट्स जो है, ये जो हमने बताया वो बेसिक बताए, एकदम प्रॉपर कि आप बराबर बना सको हैम्पर्स। अब ये हमारी चॉकलेट्स है जो हमने बना दिए, तो हम उसको कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको, पोटली आती है, चॉकलेट्स की पोटली आती है, ये पोटली के अंदर हम 10 चॉकलेट डाल देंगे और हम दे सकते हैं ये अलग अलग फ्लेवर्स डाल के, ये हमारी पोटली हो जाती है। तो ऐसी पोटली हमको अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइजेस में मिलती है। तो ये तुम ऐसा एज अ हैम्पर दे सकते हो। फिर ये ट्रेज आते हैं, तो ट्रेज में तुम चॉकलेट्स डाल सकते हो। ये जो हमने चॉकलेट्स बनाए हैं वो हम ट्रेज में डाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर सेलोफोन पेपर डाल के और बो डाल के, वो हम किसको, जैसे भी हमारे घर में रह जाते हैं ट्रेज या आते हैं ऐसे, एंड देन उसको हम सेलोफोन पेपर से कवर करके एंड वो आते हैं देखो ऐसे डेकोरेशन के लिए।
डेकोरेशन के लिए हमारे पास ऐसे बोज आते हैं और ऐसे मटेरियल्स आते हैं, ये मटेरियल्स रहते हैं। तो ये हम ट्रे के ऊपर डाल सकते हैं और ये बो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बो से हमारा पूरा पैकिंग एंड डेकोरेशन चॉकलेट का परफेक्ट हो जाता है। फिर मिठाई के बॉक्सेस आते हैं, मिठाई के बॉक्सेस में भी हम ये ऐसी चॉकलेट्स डाल के गिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर बेस फ्रॉम बेसिक टू डेकोरेशन, ये हमारा, ये देखो, ये ऐसा हमने प्लास्टिक की थैली या पर्स या ये मटेरियल से हमने इसको ऐसा कवर किए और फिर हम ये बो यूज करेंगे बांधने के लिए। ये मार्केट में बहुत सिंपल बो आता है। तो ये अभी हम ऐसा लेके, और अगर हमारी पोटली ट्रांसपेरेंट दूसरे कलर की रही तो हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, या इसको हम वो पेपर क्लिंग फिल्म से रैप कर सकते हैं और ये बो इधर लगा सकते हैं। ये डेकोरेशन हमारा सिंपल डेकोरेशन हो जाएगा। क्लिंग फिल्म से हम इसको पैक करेंगे, क्लिंग फिल्म के ऊपर हमारा ये बो आ जाएगा। तो हमारी चॉकलेट्स आ गई और हमारा बो आ गया। गॉट इट? हेलो हेलो, Yes, ma'am, you are audible. यस ऑडिबल ना? या तो ये हमारे सिंपल सिंपल स्टार्ट हम जब करेंगे तो हम सिंपल चीज को सिंपल चीज में एक्सपर्ट बनेंगे। जब हमारा ये चॉकलेट, हमारा ये सब चॉकलेट्स बन गई, जैसे अभी किसको व्हाइट चॉकलेट में प्रॉब्लम्स आ रहा था किसको, तो ये हमें सिंपल रेसिपीज बताए हैं जो आप इसको मास्टर कर लो। बिस्किट्स में भी काफी रेंज है, हाइड एंड सीक है, स्वीट हार्ट बिस्किट्स है, विद मोल्ड्स की भी जरूरत नहीं है। स्वीट हार्ट का हम डिप करेंगे तो वो आ जाएगा हार्ट के शेप में, हाइड एंड सीक आ जाएगी स्क्वायर शेप में, ओरियोज आ जाएंगे गोल शेप में, रॉक्स आ जाएंगे हमारे अलग रॉक्स के शेप में। ऐसा करते करते हम ये सब चॉकलेट जो सिंपल चॉकलेट्स है वो पहले बनाओ क्वांटिटी में, ताकि तुम्हारा पूरा सेटिंग हो जाए। बनाना सबसे पहले तो आपको चॉकलेट मेल्ट करना है पूरा बार, और बार उठा के रखना नहीं है। जो भी हमने ये चॉकलेट बार लिए हैं वो पूरी की चॉकलेट्स बनाना है, अलग अलग वैरायटी की पूरी चॉकलेट्स, उसको खोल के उठा के रखना है। फिर आप बोलेंगे कि मैं 8-10 दिन के बाद में वापस चॉकलेट बनाऊं, तो वो जो है चॉकलेट जो है वो हवा से पूरी नमी मॉइस्चर घसीटता है और आपकी चॉकलेट बराबर से मेल्ट नहीं होंगी। इसलिए प्रोफेशनल में हम लोग बताते हैं कि पूरा आप लो, एक चॉकलेट लो, उसको 3-4 जैसे 5-6 तरीके से हमने बनाया है वो पूरा बनाओ, पैक करो और फिर रखो। आप बोलेंगे कि मैं आधा अभी यूज, एक बार हमने खुला रख दिए फिर हम 8 दिन के बाद में यूज करें, ऐसा नहीं। आपको यही चीज यूज करना है फुल बना के चॉकलेट पर, 2 महीने 3 महीने तक के आपको काम में आएगी, आपको वेस्टेज का टेंशन नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इतना सब मेल्ट करूं, पैक और पैक नहीं करूं या खुला रख दूं चॉकलेट्स, तो आपकी चॉकलेट्स वेस्ट हो जाएगी। वो सेकेंड टाइम आपको बहुत परेशान करेगी मेल्ट होने के लिए। तो उससे बेटर है आप एक पूरा स्लैब लो, उसके अलग 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 नट्स, जैसे अभी आप नट्स का बना रहे हो तो आप आधे में आमंड डालो, थोड़े में वॉलनट्स डालो, थोड़े में काजू रेजिन्स डालो, थोड़े बिस्किट्स के बनाओ, थोड़े रॉक्स बनाओ, ऐसा करके तुम्हारा पूरा एक बैच बनाओ। फिर अगर आपको चाहिए तो आप व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करो, फिर व्हाइट चॉकलेट में वापस आप ये सब चीज 5-6 चीज जो है उसको एकदम परफेक्ट करो। बेसिक आपका परफेक्ट होएगा तो आप आगे मोल्ड्स यूज कर सकते हो, शेप्स यूज कर सकते हो, फ्लेवर्स यूज कर सकते हो। ये देखिए ये आपके कलर्ड चॉकलेट्स बन सकते हैं, आपके बुकेज बन सकते हैं, चॉकलेट बुकेज बन सकते हैं, आपकी शेप्स अलग हो सकती है, सब चीज आपकी बन सकती है। लेकिन बेसिक आपका अगर सही हुआ देन ओनली गो अहेड एंड बाय ऑल द मोल्ड्स। तो आप सामान सब खरीदोगे और फिर आपको बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक आ गया देन यू कैन गो फॉर एडवांस, फिर आप एडवांस कर सकते हो, पर रोशर बना सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज है चॉकलेट्स के अंदर, एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक, पैसे वेस्ट नहीं करना, चीजें वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही जो आप व्हाइट चॉकलेट का जो ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि सब जन व्हाइट चॉकलेट यूज करते हैं और आधा रख देते हैं कि हम थोड़े एक नेक्स्ट वीक बना देंगे, नहीं, आपको पूरा मेल्ट करना है, पूरे अलग अलग फ्लेवर्स देना है। जैसे अभी हम भले हम फिलिंग नहीं बनाए, चलो अभी हम
बेसिक प्रोफेशनल मेकिंग सीख रहे हैं तो हमने फिलिंग्स नहीं बनाए, नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे, ताकि एक बार हमको चॉकलेट स्टूडेंट्स लोग की दिख गई कि हाँ इन लोगों ने बनाए हैं, इन लोगों ने पैक बराबर करे हैं, इन लोगों ने पैकिंग डेकोरेशन बराबर की है, फिर आप फिलिंग्स पे जाओ, फिर आप चॉकलेट बुके पे जाओ, फिर आप नाम लिख सकते हो आप चॉकलेट का, हैप्पी दिवाली लिख सकते हो बॉक्सेस के अंदर, ये सब चीज आप कर सकते हो। बट उसमें भी सबसे पहले बेसिक काम आएगा। अभी आज हमने मार्बल चॉकलेट बनाया, हमने आज ओरियो चॉकलेट बनाई, ओरियो बिस्किट की, तो ये सब हमने सब जो बेसिक है वो आप मास्टर करो, तो आपका आगे का जो चॉकलेट मेकिंग का सफर बहुत आसान रहेगा। इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। ये हमारे खुद के, जैसे भी हम बाहर जाते हैं तो किसके लिए खरीद लेते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, प्रेजेंट्स, कभी कोई ये खरीद रहे, मिठाई खरीद रहे, ये हमको कम पैसे में हमारा टाइम, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी कला सब हम यूज कर सकते हैं। चॉकलेट में तुम्हारे पास बहुत सारी वैरायटीज है आगे, लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एक बार आपने जो आज 5-6 चॉकलेट्स आपने बना दी और प्रेजेंट पैक करके आप भले फॉइल में, अल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके रखो, जैसा खाने के टाइम पे थोड़ी देर पहले निकालो, मुश्किल से 10-15 मिनट पहले, तो वो रूम टेम्परेचर पे आपकी चॉकलेट आ जाएगी एंड यू कैन गिफ्ट इट टू समबडी। आप मेहमान आए उनको उनको दे सकते हो, सबको दे सकते हो, यूज कर सकते हो। केक्स पे लगाने के लिए चॉकलेट्स बाहर से खरीदने के बदले में आप ये यूज कर सकते हो, आपको बहुत चीजों में यूटिलाइज होगा। बट पहले की जो क्लास है वो आपको बेसिक पे पूरा ध्यान देना है, चॉकलेट पे पूरा ध्यान देना है। चॉकलेट जब खोलेंगे पूरा बार चॉप करना है, ध्यान से इसको बैठ के पूरा मेल्ट करना है, जितना इसके पीसेस, थोड़े थोड़े पीसेस बच जाएंगे निकाल के फिर उसको हल्के हाथ से मेल्ट करना है, पूरे तक का पकाना नहीं है उसको हल्की हीट देके ध्यान से उसको मेल्ट करना है। उसके बाद में उसको मोल्ड्स में डाल के सेट करना है। सेट करने के बाद में फ्रिज में छोड़ना नहीं है, 3-4 घंटे भूल गए, वैसा नहीं, बराबर आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरे 10 मिनट में मेरे चॉकलेट सेट हो रहे हैं। वैसे ही बाहर निकालो, वैसे ही पैक करो और एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखो, तो आपको ना मॉइस्चर का प्रॉब्लम आएगा, ना मेल्टिंग चॉकलेट का प्रॉब्लम आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। और आपको बहुत ज्यादा वैरायटी भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स होने के बाद में ही वो काम आएगा आपको। अगर आप एक बार ये हैम्पर बना दिए, छोटे हैम्पर्स बना दिए, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 10-12 चॉकलेट्स के हैम्पर्स बनाओ, छोटे छोटे आपके पास जो घर में रखे हुए बोल्स उसके अंदर बनाओ। ये बनाने के बाद में ही आप आगे, बिकॉज आगे जो है अभी हम आपको बहुत दिखाने वाले थे कि कलर्स है, ये देखो ये हमारे चॉकलेट में डालने के कलर्स होते हैं, चॉकलेट में डालने के फ्लेवर्स होते हैं, एसेंसेस होते हैं, आप स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल बहुत सारे यूज कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये खरीदने से पहले इतना आपको आपकी बेसिक चॉकलेट सही होना चाहिए, अदरवाइज ये कलर्स आप डालोगे, आपकी चॉकलेट बराबर मेल्ट नहीं हो रही है, तो आपके कलर्स भी वेस्ट गए, आपकी चॉकलेट भी वेस्ट गई। तो पहले आप सिंपल सिंपल चॉकलेट्स बनाओ, मार्बल चॉकलेट बना दिए, जो भी आज हमने जितने 6-7 वैरायटीज, वो ही उसको पक्का करो, उसके बाद में आप द स्काई इज द लिमिट, आप सब। अभी हम बोलेंगे कि आप ये खरीदो नहीं, पहले आप बेसिक चॉकलेट्स बनाओ, बेसिक नट्स, आमंड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वॉलनट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, खाने के बाद में कुछ बाहर से खाने के बदले में आप वॉलनट्स, बच्चे लोग को वॉलनट्स, आमंड्स, काजू, डार्क चॉकलेट इज हेल्दी फॉर हेल्थ, बाहर की चीजों तो ज्यादा हेल्दी है वो। फिर आप धीरे धीरे विदाउट मोल्ड्स बनाओ पहले, फिर आप एक एक मोल्ड्स लो, ऐसा करते करते धीरे करते करते आप सामान खरीदो, आपके चॉकलेट्स अच्छे लग गए, परफेक्ट हो गए आप, देन गो एंड बाय द कलर्स, फिर आप कलर्स लो, फिर आप एसेंस लो, चॉकलेट के कलर्स अलग आते हैं, चॉकलेट की एसेंसेस अलग आती है, वो आप अलग लो, पहले घर की चीजें ही ज्यादा यूज करो। जैसे भी Thank you, हमारी, ma'am, for today's class. Ma'am, I was thinking let's inform participants about the cake workshop that you'll be taking. ये Can you please share the information regarding the same? If you want, I can share my screen for the PowerPoint. हाँ हाँ, यो आई एम फाइन विद इट। Cool, cool. I'll just share my screen. Yeah, ma'am, you can start. हेलो, Yes, हाँ ma'am. यस, अभी ये जो हमारी मैजिक फिंगर्स बेकिंग क्लासेस है, ये खास हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है,
जिन लोग का बैकग्राउंड जरा भी नहीं है बेकिंग में, जिन्होंने कॉलेज लाइफ में बेकिंग नहीं किए है, या जो भी है, जो भी बेसिक स्टार्टिंग से, जैसे भी हमने चॉकलेट का आपको बेसिक से बताया है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपका बेसिक सही करो। वैसे ही बेकिंग में हम पहले बेसिक सही कराते हैं और फिर उसके आगे हर एक स्टेप मॉड्यूल होता है। एक होता है सिर्फ आपके ओवन हो, आपके पास ओवन है, ओटीजी है, या आपके पास ओटीजी ओवन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, आप गैस के ऊपर केक बनाने सीखो, टी टाइम केक, जिसमें आप मावा केक बना सकते हो, बच्चे लोग के लिए टूटी फ्रूटी केक बना सकते हो, बच्चे लोग के लिए डबल चॉकलेट, बच्चे लोग के लिए रिबन कलरफुल केक, ऐसे 5-6 वैरायटीज ऑफ केक के बना सकते हो घर में, आपके हाथों से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ में। और जैसे आप घर में खाना बनाते हो वैसे आप उन लोग को फ्रेश केक्स बना के खिला सकते हो। वैसे ही जैसे भी हमने चॉकलेट में बेसिक शुरू किए हैं, यही हमारी बेसिक केक्स की क्लास है, जो आगे जाके जैसे भी हम चॉकलेट्स का, आपने अगर ये मास्टर कर दिया, आपने बना दिए, फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको फिलिंग की बताऊंगी, चॉकलेट के हैम्पर्स की बताऊंगी, बुकेज बताऊंगी कि हाँ आप इसके आगे ये कर सकते हो, आप इसके आगे मैं आपको फोटोज दूंगी कि आप ये एसेंस यूज कर सकते हो, ये कलर यूज कर सकते हो, ताकि आपकी चॉकलेट की जर्नी और अच्छी हो। ये सब हम करेंगे। वैसे ही हमारी केक्स की क्लास में हम पहले बेसिक सही करते हैं कि आपका बेसिक जैसा बिगर और बिगर ओटीजी, या ओटीजी है आपको यूज करने नहीं आता है, तो वो आपको कैसे यूज करना है। आपके पास कन्वेक्शन है, आपने उसमें बेकिंग नहीं की है, तो वो हम आपको पर्सनली एक एक जन को जो भी ये लोग के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे मेजरमेंट्स केक के लिए, कैसे इंग्रेडिएंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स लेना है जो ज्यादा खर्चा नहीं करना होवे, घर के कम इंग्रेडिएंट्स में आप कैसे केक्स बना सकते हो, आपको ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, आप घर के सामान से कैसा बना सकते हो। और हर एक इंडिविजुअल का जो भी प्रॉब्लम्स, मेजरमेंट, केक के मेजरिंग कैसा करना है, केक का मिक्सिंग कैसा करना है, टेक्निक कैसा यूज करना है, रेसिपी हम आपको फुल प्रूफ रेसिपी देंगे कि हाँ ये आपको बराबर बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट करेंगे बनाने के लिए, कि आपके पास आपका जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअली वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और आपको बना के जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम सही करेंगे। और हमारी रेसिपी फुल प्रूफ रहेंगी, जैसे टेक्निक फुल प्रूफ रहेगा, वो हम समझाएंगे, मेजरमेंट्स बराबर करना है, जैसे भी आज के चॉकलेट में चॉकलेट कौन सी यूज करना है, कैसे टेम्परेचर पे यूज करना है, कैसा सेट करना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चॉकलेट बना देते हैं और उसको पैक बराबर से नहीं करके रखते, तो उसमें आधी चॉकलेट्स आपकी वेस्ट हो जाती है। तो वैसा ही वेस्टेज केक्स में नहीं करना। और केक्स की जर्नी हम शुरू करेंगे स्पंज, ये टी टाइम केक से, फिर हम स्पंज पे जाएंगे, फिर हम अलग अलग मॉड्यूल्स लेंगे, जैसे पाइनएप्पल केक बनाना, घर में चॉकलेट केक बनाना, घर में मोका केक बनाना, रस मलाई, गुलाब जामुन, अलग अलग वैरायटीज के केक्स बनाना, फिर वो केक्स को शेप देना, जैसे डॉल केक है, फोटो केक है, थीम केक है, लड़कियों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, बास्केट ऑफ फ्लावर्स, एंगेजमेंट केक, आप घर से ही बना सकते हो, बेसिक से एडवांस तक का, प्रोफेशनल तक का, वैसे ही हम आपको सिखाएंगे प्रॉपरली। और ये जिसने भी हमको ये बना के चॉकलेट्स, बेसिक चॉकलेट्स बनाया है, उसको हम कौन से एसेंस यूज करके, कौन से चॉकलेट में कौन से कलर्स डाल सकते हैं, कौन से फ्लेवर्स डाल सकते हैं, वो हम फ्री में ही बताएंगे। आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारा नंबर 9833480707। अगर आपने बेसिक चॉकलेट बना दी, हमको बताए, कुछ प्रॉब्लम्स होएगा हम सॉल्व करेंगे और आपको आगे ये चॉकलेट्स बनाने बताएंगे। वैसे ही केक्स की जर्नी हमारी प्रोफेशनल लेवल तक के है, फॉन्डेंट है, आप हमारा पेज फॉलो करो, मैजिक फिंगर्स बेकिंग क्लासेस, जो इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। तो वहाँ आपको वैरायटी ऑफ केक्स मिलेंगे, जो हमने हाउस वाइफ जिनको कुछ नहीं आता था उनको हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके टी टाइम केक से लेके लोगों को प्रोफेशनल लेवल तक का, जो लोग अपने आप से ऑर्डर्स ले सकते, इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों को है कि लोग अपने ओन ऑर्डर्स कर रहे हैं, वैसा हम उनके लिए So खास everyone, हाउस just वाइफ। to inform you about the workshop. तो मैम ये जो वर्कशॉप लेंगी ये 12th से 16th जुलाई, दैट इज लाइक 5 days का वर्कशॉप होगा, फ्रॉम 7 to 8:30 PM। एंड इन 5 days में मैम आपको टूटी फ्रूटी, डबल चॉकलेट, मावा, कोकोनट, रिबन
एंड मार्बल केक सिखाएंगी एज वेल एज मफिन बनाना सिखाएंगी. सो विल गेट टू नो बेकिंग के बेसिक्स. एज मैम सेड कि काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं, काफी सारी टिप्स हैं जो सीक्रेट टिप्स मैम के हैं, सीक्रेट रेसिपी है, मैम वो शेयर करेंगी. स्पंज मेकिंग बताएंगी, टूल्स कैसे हैंडल करते हैं, नोजल वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, क्राफ्टिंग, लेयरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैम इस 5 days की जर्नी में कवर करेंगी. एंड इस कोर्स की यूटिलिटी इज फॉर पीपल जिनको प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है इन केक मेकिंग एंड सेलिंग, एज वेल एज पीपल जो पार्ट जो टाइम हॉबी वाइज केक बनाना चाहते हैं घर वालों के लिए किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर. दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस वर्कशॉप. The charge for this workshop is 1,000 rupees for 5 days. And if you want any help, or you can contact us, either me or Meet. We both are admins of Wave Club WhatsApp group. आप हमें contact करिए and we'll connect you with the man. So if anybody is interested, just DM us and we'll let you know about the details of the classes. If you have and any. we'll be giving WhatsApp assistance to all the students. Whatever problems they have, we'll be solving it in class Yes. as well as Correct. And these are some of the cakes जो मैम ने बनाए हुए हैं. You can see how beautiful these cakes are, as well as कि मैम को काफी सारे reviews भी मिले हैं about her online baking classes, which you can refer to. Ma'am, would you like to speak anything about this? आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो. हमारा फोटे है पर्सनल अटेंशन देना स्टूडेंट्स को, उनके पर्सनली उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना सबके सामने, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी उनको भी समझ में आए कि जैसा भी ये व्हाइट चॉकलेट है तो क्या क्या मिस्टेक होती है. एक मिस्टेक होती है कि लोग पूरा मेल्ट नहीं करते, चॉकलेट रख देते खुली हवा में. वो कभी भी नहीं करना है. चॉकलेट को किसके साथ में एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज, चॉकलेट को ये बार को फ्रिज में जरा भी रखना नहीं, कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है. इसको एयर टाइट कंटेनर में बाहर ही रखना है. और रखना तो है ही नहीं, जस्ट जैसा हमने खोले वैसा ही बना के पूरी चॉकलेट्स रात के टाइम पे बनाना है, जब आप फ्री हो किचन के अंदर, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो. तो जब भी आपको खोलना है पूरा सेट करना है, आपके विदाउट मोल्ड्स बिस्किट्स लेना है, नट्स लेना है, जो भी हमने आज पता है आपको, वो आपकी चॉकलेट्स लेना है, नट्स लेना है, और टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री काम करना है. फ्रिज में रखना है. पूरा साइकिल होता है, मेल्ट करना, मोल्ड्स में डालना, सेट करना, निकालना, पैक करके फ्रिज में रखना. ऐसे ही साइकिल 3-4 साइकिल आपके होएंगे. आपके पहले नट्स का होएगा, पहले आपके बिस्किट्स का होएगा, मार्बल का होगा. ऐसा करके आप पूरे जो भी है आपका जितना भी चॉकलेट्स है वो आपकी सब पूरी बार की बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा 1 घंटे में. आपकी सारी चॉकलेट्स बन भी जाएगी, सेट भी हो जाएगी, और आप 2 महीने के लिए यूज भी कर सकेंगे. वैसे 2 महीने चलती नहीं है, सब बच्चे बड़े को बहुत शौक आता है, वो लोग खा लेते हैं, और वो एक अलग बात है. आई होप आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो. Yes. आपके So डाउट्स पूछ सकते हो. people, if you have any question, you can write on chat and I'll communicate that thing to the ma'am. Ma'am, Shagufta is asking, cannot we keep it without wrapping? We can keep it without wrapping, but in an airtight container. But what happens when you remove it from the fridge for having, वो आप ही आप मॉइस्चर आ जाएगा. जब अगर हमको घर के लिए बनाना है, बच्चों को देना है, तो इट्स ओके. आप निकालो, टिश्यू पेपर में ऐसा रखो थोड़ा सा, जो मॉइस्चर होएगा, और आप दे दो खाने के लिए. घर के लिए इट्स ओके. आप रैप नहीं करो तो आप निकालो और उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, और खाने के टाइम पे आप टिश्यू पेपर से थोड़ा सा पूरे बच्चे लोग को दे. बट फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस, मेहमान लोग के सामने रखना, तो इट्स बेटर दैट यू पैक इट अप. आई वुड रेकमेंड, हम रेकमेंड करेंगे कि आप इतना सा पैक कर लेंगे तो आपको मॉइस्चर का जरा भी टेंशन नहीं होगा, और आपकी चॉकलेट्स आपको यूज में आ जाएगी. आपने देखे कितने प्रिटी लगते हैं कलर्स चॉकलेट्स के. यू कैन मेक इट इन सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कलर्स, एवरीथिंग.
And Batul Ching And is asking, can we use gulab jamun for chocolate making? गुलाब जामुन, व्हाई यू वांट गुलाब जामुन के ऊपर आप चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हो, बट जो अच्छी चीज है उसको आई वुड प्रेफर कि आप गुलाब जामुन के ऊपर चॉकलेट जो हमने मेल्ट किए हैं वो बस डाल के आप सर्व करो इंस्टेड ऑफ मेकिंग, बिकॉज गुलाब जामुन इज अ पेरिशेबल, वो पेरिशेबल है, वो आप 2 महीने नहीं रख सकोगे। एंड गुलाब जामुन बहुत स्वीट रहता है, तो इट्स बेटर दैट, वैसे ही अच्छा रहता है वो, तो वो यूज मत करो आप। हाँ, काजू कतली है, बूंदी है, जो भी ड्राई मिठाई रहती है वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वैसे आप गुलाब जामुन को भी चॉकलेट में डिप करके निकाल के सेट करके मेहमानों को दे सकते हैं। दैट विल बी योर ओन क्रिएशन, ओन रेसिपी। Sakshi is asking, how can we make color chocolates? देखो, कलर चॉकलेट्स आप पहले प्लेन चॉकलेट्स बनाओ जैसे हमने बताया है, फिर ये हमारे कैंडी कलर्स आते हैं। ये जो होता है चॉकलेट के लिए खास कलर्स आते हैं। कहीं भी जो केक शॉप है जहाँ चॉकलेट्स मिलती है, जहाँ सामान मिलता है, तो आप पूछ सकते हो कैंडी कलर्स। और जैसे हम चीजों में मिलाते हैं कलर, वैसे 1-2 ड्रॉप मिला के आप मिक्स कर लो। लेकिन पहले हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप कलर्स यूज करो, या आप एसेंस, देखो ये ऑयल बेस्ड एसेंस आते हैं, वो आप यूज करो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आपकी टेक्निक राइट है या कलर्स की वजह से प्रॉब्लम है या कोई चीज की वजह से प्रॉब्लम है। तो आप पहले विदाउट कलर्स, विदाउट वो बना दो, आपकी टेक्निक राइट हो गई, फिर आप कलर्स यूज कर सकते हो। और कलर्स आप व्हाइट चॉकलेट में ही यूज कर सकते हो। व्हाइट चॉकलेट में आप कौन से भी कलर्स, कैंडी कलर्स आप डाल के बना सकते हो। कैंडी कलर्स भी डालो, अभी जैसे भी ये चॉकलेट है, अभी आपकी ये चॉकलेट है, तो आपने इसमें कलर डाला और साथ में स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हो फ्लेवर, ताकि ये स्ट्रॉबेरी या रोज, रोज एसेंस भी डाल सकते हो, लेकिन ऑयल बेस्ड एसेंस चॉकलेट के लिए वो डाल सकते हो आप। फिर ये पर्पल है, तो आप ये पर्पल जो है वो आप ब्लूबेरी फ्लेवर डाल सकते हो, ताकि आपके चॉकलेट के अंदर फ्लेवर भी आए और कलर भी आए। ये ब्लू है, तो आप ब्लूबेरी एसेंस भी डाल सकते हो ब्लू कलर के साथ में, ताकि आप दोनों कलर और एसेंस दोनों फ्लेवर जो है मिल्क चॉकलेट में ब्लूबेरी का आएगा और कलर भी आ जाएगा। बट ये सब कब कर सकते हो, जब पहले आप व्हाइट चॉकलेट बना के सेट करके आपने हैम्पर बना दिया है, उसके बाद में। Awesome. So I guess if there is no more question, let's end the class here. And I'll like to thank Shavana ma'am. काफी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग क्लास ली है आपने. It's awesome. Thank you for arranging the class as well as the participants. Hope they put the knowledge to use. That is a सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉलेज तो आजकल बहुत, पहले नॉलेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट नॉलेज मिलना, अभी नॉलेज बहुत ज्यादा मिल रही है, उसको यूज करना वो बहुत इम्पोर्टेंट। Correct, correct. So people, I'm sure कि some of you would have made the chocolate with us today. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली गो ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग अस देयर विद योर चॉकलेट एज वेल एज शबाना मैम को टैग करिए. आपने आज क्या सीखा क्लास में. दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस. एंड सेकंड थिंग, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड फीडबैक फॉर्म, तो प्लीज वो फिल करना ना भूलिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आप फीडबैक हमें देते रहें सो दैट वी कैन इम्प्रूव. मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप फीडबैक दे कि हम क्लास में, क्वांटिटी बहुत आसान है बताना, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कम चीज बताओ, पहले लोगों को कम चीज में बराबर परफेक्ट करो, फिर आप उनको क्वांटिटी बताओ. Yes, yes, correct, ma'am. So I guess with this we can end the class. थैंक यू द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वेरी मच. आप लोग यूज करो, ये नॉलेज यूज करो एंड मेकिंग यू बी हैप्पी एंड यू मेक अदर्स हैप्पी. जब हम बनाते हैं चॉकलेट्स, को चॉकलेट बनाने वाला भी खुश होता है, जिसको चॉकलेट मिलती है वो भी खुश होता है, जो चॉकलेट लेके किसी और को देता है वो भी खुश होता है. So just spread happiness. That is the most important thing in the world. Awesome, awesome. Thank you, ma'am, for this inspirational message as well.
So people, ma'am का Insta है Magic Fingers Baking Class. You can go there and can check ma'am's Insta. वहाँ पर आप उनको follow कर सकते हैं. As well as do follow us or at Wave of Passion. And feedback form मैंने circulate कर दिया है, तो please do fill the feedback form. आपका जितना भी feedback है मैं मैम से भी share करूँगा. So that is also useful for her future classes as well. Yes. And if you are interested in paid cake workshop with ma'am, it will be a 5 days workshop. And उसमें आप 6 to 7 cakes बनाना सीखोगे. And ma'am will be hands on with all of you who will be joining that paid workshop. So do DM me. You can get my number from Wave Club. I'm the Wave Club admin. So आप वहाँ पर मेरे को message कर सकते हैं and I'll add you to the Insta. The classes are starting from day after tomorrow. So please make sure if you are participating, inform me today or by tomorrow evening so that I can give a right count to the map. So with this, I guess this is the end of the class. Thank you everyone Thank for you, thank attending you. today's class, and thank you ma'am for taking such a beautiful class. So Thank you so much. end the meeting, and YouTube की जो link है, it'll be YouTube पर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा by 9 PM, and आप सभी वहां पर जाकर देख सकते हैं, and मैम को मैं इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा. Thank you so much. I guess I'll just end the meeting here. Thank you all. Enjoy your weekend. Bye bye. Thank you. And